Hello students, welcome to Educate. Today we'll be completing the first chapter of your class 11th history जो था राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो अब हमने इस चैप्टर में समझा है about importance of trade, river routes, important rivers and its tributaries along Mesopotamia, Euphrates, Tigris, etc. and places like Sumer, Akkad, and also different important ports and centers of trade and commerce which were there in ancient Mesopotamia. काफी एक ancient city थी जिसका international trade चलता था काफी अलग अलग ancient civilizations के साथ, काफी flourishing थी. Clay tablets, inscriptions, we had also studied about that. So therefore we'll be moving on and completing this chapter now. अभी तक हमने देखा था वहां पे जो लैंग्वेजेस थी किस तरीके से थी. देयर वाज अ ट्रेस ऑफ Aramaic also, and later on as we move forward you will notice about the written tablet, the ruler of Arata. All right, okay, so kings as we have seen before अपनी बहुत ज्यादा प्रेजेस करवाते थे, अपने बारे में अच्छा ही बुलवाते थे. सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड. एंड इसको एक लिटरल ट्रूथ लेना और साथ में डिबंक करना हिस्टोरियंस के लिए अक्सर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. ऑलराइट, ओके, सो अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स. अब हम यहाँ के रिलीजन के बारे में देखेंगे, कल्चर के बारे में देखेंगे. excuse me, about how the social structure was, religious perspective से, and the faith that the people had in which deity and in which religious form, whatever it was, we'll be reading it now. Okay, from 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. These were of various kinds, those that gradually developed around temples. All right, so they were developing around temples. ठीक है, temples बहुत important centers होते थे. So those that develop as centers of trade and imperial cities, political consolidation, trade और commerce वो होना, और साथ में एक टेम्पल अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी वाली पोजीशन होल्ड करता है जिसमें कि एक टाइम पे काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और अपने साथ साथ कोई भी अगर रॉयल एक तरीके से डिसीजन आया है, whatever it is which is from the royal family or the king, it is easy to convey through a temple. That is why. Okay, so and imperial cities, it is cities of the first two kinds that will be discussed here. Okay, early settlers जो थे, they began to build and rebuild temples at selected spots in the villages. All right, so earliest जो known temple था, that was a very small shrine, okay, made of unbaked bricks. Okay, unbaked bricks से बना होता था. Temples were the residences of various gods. So what do we learn from here? Polytheistic. Okay, it was a polytheistic society. They worshipped many different gods at the same time, much like the Hindu religion in today's time. Okay, so of the moon god of Ur, or of Inanna, the goddess of love and war, इनका worship चलता था. Constructed in brick, temples became larger over time with selected rooms and several rooms, और open courtyards के साथ भी था. On some of the early ones, possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of a god. Okay, so the temple was the house of God. It was not an ordinary place. All right, temples always had their outer walls going in and out at regular intervals, which no ordinary building ever had. All right, किसी भी ordinary building में ऐसे rooms और ऐसे दीवारें, walls नहीं थी, which was very different. So what we learn from here is temple architecture
was different from normal architecture. All right. So the god was the focus of worship. To him or her, people brought grain, curd, and fish. The floors of some early temples had thick layers of fish bones. अब वहां पे जो उनके गॉड्स होते थे उनको वो क्या चढ़ावा चढ़ाते थे, अनाज चढ़ाते थे, कर्ड यानी कि दही चढ़ाते थे, और मछलियां भी चढ़ाते थे, फिश भी चढ़ाते थे. All right. The god was also the theoretical owner of the agricultural fields, fisheries, and the herds of the local community. So basically जो gods होते थे यही concept था जो modern day religion का भी चलता है, that he or she, the god जिसका भी temple है, they are the owner of all the resources, natural resources in the country or in the land. That included fisheries, agricultural activities and agricultural lands along with herds. जो गाय बकरी या फिर ऐसे चराने वाली कम्युनिटीज थी उनके लिए भी, किसानी करने वालों के लिए भी, और साथ में ओवर एंड ऑल हर किसी के लिए. ऑलराइट, एक्सक्यूज मी. सो in time the processing of produce, for example oil pressing, grinding grain, spinning and the weaving of woolen cloth was also done in the temple. ये सारी चीजें भी, सिलाई बुनाई का काम, तेल निकालने का काम, ये और जैसे अगर कोई मान लीजिए अनाज है, जैसे आटा होता है फॉर एग्जाम्पल दैट्स फ्लावर, तो उसको पीसा जाता है, फिर उसमें से क्या कहते हैं कच्चा आटा निकलता है जो कि खाने में यूज होता है. ये सारी एक्टिविटीज टेम्पल्स में होती थी. ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव ऑफ द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स of distributions and allotments of grain, plow animals, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. अब धीरे धीरे वहां पे सारी activities होने लगी. As it became temple architecture, temple became the hub of all activities. All right. So it became the hub of all activities, and as it gradually started including more and more of these things that were happening there, the more power and consolidation it received and gained at a particular point in time also. All right. But there was also another factor on the scene. एक और factor था इसमें. अब natural fertility, agriculture, ये सारी चीजें भी सब्जेक्ट्स तो थे, दे वर सब्जेक्ट्स ऑफ हैजर्ड. हाउ? द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेटीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ द यूफ्रेटीज would have too much water one year and flood the crops, and sometimes they would change the course altogether. Excuse me. द नेचुरल आउटलेट, अब ये जो नेचुरल आउटलेट्स थे कभी कभी वो बहुत ज्यादा सूख जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी. एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेजेस वर पीरियोडिकली रिलोकेटेड इन द मेसोपोटामियन हिस्ट्री. अब मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी, बार बार विलेजेस को रिलोकेट करना पड़ता था. ऑलराइट, दिस वाज एन इशू. फर्टिलिटी तो था ही, बट एट द सेम टाइम व्हाट वाज नोटिस्ड वाज आल्सो द फैक्ट कि धीरे धीरे अब एक तरीके से प्रॉब्लम्स भी आ रही थी ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ वाटर, इरिगेशन एंड द ट्रिब्यूटरी समटाइम्स ओवरफ्लोइंग causing a flood or either drying up through and through. All right, so upstream stretches of channel would divert so much into their fields that villages downstream were left without water. Villages जो नीचे थे, they were left without water, कोई पानी होता ही नहीं था, और they could neglect to clean out the slit from the stretch of the channel, blocking the flow of water further down. So the early Mesopotamian countryside saw repeated conflict over land and water. Conflict over
land and water. Very important. What was the conflict over? जिनको नहीं दिख रहा मैं यहां लिख देता हूं, land and water. ओके, ये मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था. अगर ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ्लिक्ट का मेन जड़ क्या थी, ये थी. ऑलराइट, when there was a continuous warfare in the region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot, all right, and could take prisoners from the defeated groups to employ as their guards or servants, sometimes slaves also. okay, तो होता क्या था, ये मोस्टली जो रिसोर्सेस का एक तरीके से हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन था, ऐसे होता था. कोई वॉर लड़ी जाती थी, उसमें कुछ भी था, स्पॉइल्स थे, उसकी लूट्स थी, वो इक्वली बांटी जाती थी. और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो या तो सोल्जर्स बनते थे या फिर सर्वेंट्स बनते थे. ओके, सो सच वॉर लीडर्स हाउएवर वुड बी हियर टुडे एंड गॉन टुमारो until a time came when a successful leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institutions or practices. जब तक कोई नई इंस्टीट्यूशन नहीं आ जाती थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, तब तक हालात वैसे के वैसे ही रहते थे. और धीरे धीरे ये सारी चीजें परमानेंट तो थी नहीं, सो इट स्टार्टेड फेडिंग अवे. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन टाइम विक्टोरियस चीफ्स began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community's temples. अब जो चीफ्स होते थे, लोकल चीफ्टन्स थे, लोकल चीफ्स, when they emerged victorious in the war, उनका एक बहुत बड़ी एक परंपरा या फिर एक ट्रेडिशन ऐसा होता था कि वो टेम्पल को बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देते थे. अपने जो भी उनके स्पॉइल्स हैं, जो लूट्स हैं, जो भी उन्होंने रिसोर्सेस प्रोक्योर करे हैं उस पर्टिकुलर वॉर से, उसके बाद वो टेम्पल को बहुत ज्यादा डेकोरेट करते थे. सो इन टाइम विक्टोरियस चीफ्स, सो ये जो गॉड्स को एक चढ़ावा देने की प्रथा थी, वो सिर्फ रिलीजियस मोटिव से तो नहीं थी. देयर वर अदर मोटिव्स अटैच्ड टू इट एज वेल. दे वुड सेंड मेन आउट टू फेच फाइन स्टोन्स एंड मेटल for the benefit of the god and the community and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. ठीक है, अब अकाउंट भी रखा जाता था, कौन सी चीज आ रही है जा रही है टेम्पल में, सारी चीजों का. Alright, as the poem about Enmerkar shows that this gave the king high status. This gave the king what? High status. To achieve higher status, all right, and in water. So the booty or the bounty or the gifts given to the gods, gifts to the gods, so gifts to the god ensured higher status, meant is equal to higher status. All right, so it was done for higher status. We can imagine a mutually reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves. ठीक है, अब जो settlement थी वो अपने आसपास ही बना रहे थे. To be able to rapidly get an army together. अब अपनी फौज इकट्ठी करना, उसको consolidate करके, unite करके, एक single motive के साथ आगे बढ़ना, to move forward. Besides, temple would be a safe living in close proximity to one another. As I said before, people uniting, getting together at one particular place for anything important, a temple was the easiest place to do so. Okay? All right. We can imagine a mutually reinforcing cycle of development over here. Also, अब यहाँ पे हम देखते हैं at Uruk, one of the earliest temple towns, we find depictions of armed heroes and their victims. Okay, and careful archaeological surveys have shown that around 3000 BCE, when Uruk grew into an enormous extent of
250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro, would be in later centuries. Dozens of small villages were deserted. अब जब हम बात करते हैं for example the city of Uruk, it was an enormous city, काफी बड़ा एक city थी Uruk, and later on extent of 250 hectares, somewhere around 3000 BC, we also see that it later fragmented and it was not there anymore and distributed within the land into different places of settlements. All right, very important. Okay, so there was a major population shift. Before we move forward, एक बार ये आप diagrams देखें. Look at the diagrams. So these are inscriptions of the carvings जो temples के आसपास मिली हैं. From here you can see it is visible that either there is a god or a chief, authoritative figure यहाँ पे है, and there are people, soldiers or humans obeying to his command. Okay. Here it is showing a bearded man twice. ठीक है. Over here, see, ये जो स्टेल है इसमें बो एंड एरो एंड ऑल द स्किल्स, ये एक वॉरियर टाइप का फिगर है, दैट इज ऑल्सो देयर. सो व्हाट वी सी हियर इज significantly Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. Defensive wall Uruk में बहुत जल्दी बन चुकी थी and it was continuously occupied, और ये ऑक्यूपेशन के अंडर ही थी from 4200 BC to 400 Common Era, very long time. Okay, और 2800 BC से it had also expanded to an area of 400 hectares. Okay, this is very important. War captives and local people were put for work for the temple, okay, or directly for the ruler, either the temple or the ruler. Prisoners of war, very important, what was done with them. This rather than agricultural tax was compulsory. This was compulsory. ठीक है, agricultural tax हो ना हो ये बहुत ज्यादा compulsory था. Those who were put to work were paid rations. Okay, so जो servants जिनसे काम कराया जाता था, they were paid rations at the same time. Okay, hundreds of ration lists have been found which give against people's names the quality of grain, cloth or oil allotted to them. Okay, so it has been estimated that one of the temples took 1500 men working 10 hours a day to 5 years to build. All right, इतना समय लगता था कि one of the temples, एक टेम्पल को 1500 लोग लगते थे वर्किंग, जो कि 10 घंटे एक दिन में काम करे, तब जाके 5 साल में एक टेम्पल बनता था. ओके, with rulers commanding people to fetch stones or metal ores to come and make bricks or lay bricks for a temple, or else to go to a distant country to fetch suitable materials. There were also technical advances at Uruk. All right, technical advances around 3000 BCE. Okay, bronze tools came into use for various crafts. Bronze tools. Okay, तांबा भी बहुत ज्यादा, कांस भी बहुत ज्यादा यूज होता था. Okay, architects learned to reconstruct or construct brick columns. There were being no suitable wood to bear the weight of the roof of large halls. Halls बहुत बड़े थे, उनके वेट बहुत ज्यादा था और उनके वेट को कैरी करना भी इतना आसान नहीं था. Hundreds of people were put to work at making and baking clay cones that could be pushed into temple walls, painted in different colors, creating a colorful mosaic. Mosaic is what? It's like a grid pattern.
grid pattern filled colors. Okay. In sculpture, there were superb achievements not in easily available clay but in imported stone. And there was a technological landmark that we can say is appropriate to an urban economy. It was heading towards an urban economy. Very important, note this down. The potter's wheel, in the long run, the wheel enables a potter's workshop to mass produce dozens of dozens of similar pots at the same time. All right. So technological advancements are also there, wheels and its uses, and along with the servants that were put to work who were prisoners of war after a war was declared at one particular place. उसके बाद में, okay, so we'll have a look at the seal. These seals were important. We have also studied in the other chapter. In Indus Valley civilization, it symbolized a symbol from where goods or the products came from. All right. Merchants, traders, and cities also sometimes had their official seals made up. Okay. So in India, early stone seals were stamped. In Mesopotamia, until the end of the first millennium BCE, cylindrical stone seals pierced down the center were fitted with a stick and rolled over with wet clay so that continuous picture was created. All right. They were carved by very skilled craftsmen and sometimes carry writing. Okay. The name of the owner, his god, and his official position, etc. A seal could be rolled on clay covering the string knot of a cloth package or the mouth of a pot, keeping the contents safe. When rolled on a letter written on a clay tablet, it became a mark of authenticity. So the seal was the mark of a city dweller's role in public life, as I've said before. ठीक है, important. सील क्या होते थे? रिप्रेजेंट करते थे एक शहर को, एक बंदे को, एक मर्चेंट को, कि कहां से गुड्स और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको मार्क करते थे. एज सिंपल एज दैट. ऑल राइट. लाइफ इन द सिटी. अभी तक हमने देखा है द रूलिंग एलीट हैड इमर्ज्ड एंड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड अ मेजर रोल इन द शेयर ऑफ वेल्थ. अब इसमें कुछ भी जो एनॉर्मस रिचेस थे, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा वाइट शेल्स, लपिस लजोली एंड सेरेमोनियल डैगर्स ऑफ गोल्ड वर ऑल्सो देयर बरीड विद सम किंग्स एंड क्वींस इन उर. तो ये तो इस बारे में जानते हैं, बट ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, एज आई हैव आल्सो मेंशन्ड बिफोर, हाउ द सोसाइटी वाज, हाउ इट कंडक्टेड इटसेल्फ, हाउ द पीपल मूव्ड ऑन विद देयर डेली लाइव्स, we'll be studying that. Okay, so we know from legal texts basically disputes होते थे, inheritance matters etc. ये सब बहुत common था. That in Mesopotamia the society was a nuclear family. Nuclear family basically comprises a man, wife and children. So it's not a joint family. There are no grandparents etc. Nuclear family होती थी. Was the norm. Although married sons and his family often resided with his parents. कई बार पेरेंट्स के साथ भी रिजाइड करते थे. यूजुअली न्यूक्लियर फैमिली होती थी. द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली. वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज. अब मैरिज के प्रोसीजर्स, मैरिटल प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ा कम पता है. ऑलराइट. अ डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, द ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज. ब्राइड का कंसेंट उसके पेरेंट्स देते थे. So that was something very important. All right. This point might be asked as a question. So you must remember. Okay. Then a gift was given by the groom's people to the brides. It was the other way around. Unlike the dowry norm in India. Okay. To the bride's people. All right. When the wedding took place,
गिफ्ट्स वर एक्सचेंज्ड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे. Excuse me, who ate together and made offerings in a temple. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given the share of the inheritance by her father, by her own father. Okay? The father's house, herds, fields, etc. were inherited by the sons. Okay? More or less similar to the Indian way that was done. All right. Let us look at Ur, one of the earliest cities to have been excavated. Ur was a town whose ordinary houses were systematically excavated in the 1930s. Narrow, winding streets indicate that wheeled carts could not have reached many of the houses. अब wheeled cart हर जगह पहुंच नहीं पाता था, पहिया या फिर पहिए वाली गाड़ी इतनी इजीली हर जगह पहुंच नहीं पाती थी. That is something important. Sacks of grain and firewood would have arrived on donkey back. अब ये जो क्या कहते हैं अनाज हो गया या लकड़ियां हो गई, यूजुअली डोंकी बैक यानी कि गधे की पीठ पे लेकर आते थे. All right. Irregular shapes of house plots also indicate an absence of town planning. There were no street drains of the kind we find in contemporary Mohenjo-daro. ठीक है, drains and clay pipes were instead found in the inner courtyards of the Ur houses, and it is thought that the house roofs sloped inwards and rainwater was channeled via the drain pipes into sumps in the inner courtyards. So a sump is a covered basin on the ground into which water and sewage flow. नीचे की तरफ जाता है जिसमें पानी और sewage इकट्ठे flow होता है. All right. So this would have been a way of preventing the unpaved streets from becoming excessively slushy during a downpour. All right, downpour जब हो रहा है तो उस टाइम पे उसको excessive accumulation होने के लिए, उसे रोकने के लिए इस तरीके से courtyards और roofs slope तरीके से shape करे जाते थे. ये आपका important है. This you have to learn exactly how it is. All right. Yet people seem to have swept all their household refuse into the streets to be trodden underfoot. जो ड्रेनेज सिस्टम था, कनाल सिस्टम था, उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था एज कंपेयर्ड टू कंटेम्पररी मोहनजोदारो. देयर वर डिफरेंट वेज इन विच दे डिड इट, एंड बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम नहीं था तो घर का कूड़ा कचरा सीधा स्ट्रीट में डाल देते थे. ऑलराइट, दिस मेड द स्ट्रीट लेवल्स राइज. अब स्ट्रीट लेवल्स ऑब्वियसली राइज होंगे क्योंकि इतना डिब्रीज और कचरा इकट्ठा हो रहा है. And over time, the threshold of houses had also to be raised so that no mud would flow inside the house after the rains. ठीक है, अब नीचे जैसे घर का लेवल ऊपर कर देते थे ताकि जो बाहर कूड़ा कचरा है बारिश के टाइम पे वो घर के अंदर ना आ जाए. All right. Light came into the rooms, not from windows but from doorways. Opening into the courtyards, this would also have given families their privacy. All right. There were superstitions about houses recorded in omen tablets at Ur. तो अंधविश्वास और इसको लेकर के कि लकी है या अनलकी है, आर्किटेक्चर अबाउट हाउसेस, उसके बारे में भी उर में हमें एक मेंशन मिलता है. All right. So basically we see that a raised threshold brought wealth. A front door that did not open towards another house was lucky. But if the main wooden door of a house opened outwards instead of inwards, the wife would be a torment to her husband. Basically, कि हम जो घर का लेवल है वो ऊपर होना चाहिए, वो लकी होता है. दरवाजा जब खोले आप मेन गेट तो किसी और का घर ना देखिए, वो लकी है. और दरवाजा अंदर की तरफ खुले, बाहर की तरफ ना खुले. ऑलराइट. सो ये दो तीन चीजें एक तरीके से सुपरस्टिशन मानी जाती थी उर में, एंड द टैबलेट्स दैट हैव बीन फाउंड देयर आल्सो इंडिकेट द सेम. देयर वाज अ टाउन सेमेटरी एट उर in which the graves of royalty and commoners have been found, but few individuals were found buried under the floors of ordinary houses. All right. So cemetery, लोगों का दफनाया जाना,
वो भी एक प्रैक्टिस पता चलती है इन और कॉमनर्स और रॉयल्स के बीच में। कॉमनर्स यानी कि नॉर्मल जनता, रॉयल्स यानी कि जो रॉयल ब्लड होल्ड करते थे। ओके, a trading town in a pastoral zone. So, after 2000 BC, the royal capital of Mari flourished. जो मारी का रॉयल कैपिटल है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये नोटिस करेंगे कि ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव एक प्लेन एरिया है, ठीक है, और काफी ज्यादा उसमें एग्रीकल्चर एंड फर्दर अपस्ट्रीम यूफ्रेटिस के आसपास इसका काम चलता है। ऑलराइट, मैप 3 with its color coding shows that agriculture and animal rearing were carried out close to each other. ठीक है, एनिमल रेयरिंग वर कैरी आउट क्लोज टू ईच अदर इन दिस रीजन। अब आसपास चलता रहता था एनिमल रेयरिंग भी और एग्रीकल्चरल भी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का जो मैप है, लैंड फ्लडेड ईच ईयर लेट स्प्रिंग। अब ये जो ग्रीन वाला है, ये वो वाला लैंड है जिसमें बार बार बाढ़ आ जाती थी। एग्रीकल्चरल लैंड ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स वाला है। टेरेसेस ऑफ कैनाल दैट कैन नॉट रीच पास्चर लैंड। अब ये टेरेसेस है कैनाल के जो कि लैंड पे नहीं पहुंच सकता था। पास्चर लैंड इन स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के समय में यहां पे गाय भैंस चराते थे, अपनी जानवर चराते थे। सो मोर और लेस ये आपका मैप है। अब हर्डर्स, जो यंग एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं रेयरिंग के लिए, उन्हें बार बार इधर से उधर एक्सचेंज करना, दूसरे हर्डर्स को देना, अपने पास रख लेना, ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा चलती थी। ऑलराइट, और वापसी में उन्हें मेटल और ग्रेन मिला करता था, अनाज मिलता था, ग्रेन मिलता था और डिफरेंट मेटल्स मिलते थे। ऑलराइट, और साथ में इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते थे? अ शेपर्ड मे टेक हिज फ्लॉक टू वाटर अक्रॉस द सोल फील्ड टू ग्रो इन द क्रॉप। बेसिकली अपनी जो गाय बकरियां होती थी, जो भी उनके पास रेयरिंग के लिए था, वो अपने शीप को लेकर के किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे, फर्टाइल लैंड पे ले जा करके उन सारे क्रॉप्स खिलवा देता था। सो हर्ड्समैन बीइंग मोबाइल कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस एंड सीज देयर स्टोर्ड गुड्स। उनके पास एक अपर हैंड था, वो एग्रीकल्चरल लैंड पे जाकर के एग्रीकल्चरल लोगों से काफी सारी चीजें लूट सकते थे, उन्हें रेड भी कर सकते थे। दो थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री, नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट filtered into the prosperous agricultural heartland। अब जो prosperous agricultural heartland है आपका, बिल्कुल जो बिल्कुल सेंटर में था, उसमें काफी सारे लोग, नोमैडिक कम्युनिटीज रिसाइड करते थे। अब कुछ जो इनमें से थे उन्हें हर्डर्स भी कहा जाता है, और बहुत ज्यादा प्रॉस्परस और बहुत मतलब आगे बढ़ने लग गए थे और वो वहीं पे सेटल हो चुके थे। सो अ फ्यू गेन्ड पावर टू एस्टैब्लिश द रूल। इतना कि कुछ हर्डर्स बहुत पावरफुल हो चुके थे और अपना रूल तक एस्टैब्लिश कर लिया था। ओके, जैसे कि अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस, आरामियंस। इंपॉर्टेंट। ओके, जो किंग था मारी का, वो एमोराइट्स थे, whose dress differed from that of the original inhabitants and who represented not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple of Mari for Dagan, god of the steppe। स्टेपे का काम होता है हर्डर्स का, नोमैड्स का, नोमैडिक कम्युनिटीज का। सो दैट इज वाई उनसे रिलेटेड गॉड भी जो था, फॉर एग्जाम्पल मारी फॉर डागान, इनका लिखा गया था, इनका एक टेम्पल बनाया था, गॉड ऑफ द स्टेपे। अब मेसोपोटामियन जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, और ये इस इंटरमिक्सचर की वजह से जो इस टाइम पे सिविलाइजेशंस थी, उसमें एक बहुत ज्यादा एक मिक्स ऑफ कल्चर देखने को हमें मिलता है। ऑलराइट, सो ये पैलेस है एट मारी ऑफ किंग जिम्रिलिम। थ्रोन रूम, इनर कोर्ट, आउटर कोर्ट, ऑडियंस हॉल, आपको आइडिया रहेगा तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। ओके, ये स्क्राइब्स ऑफिस with benches and clay bins for storing tablets, courtyard, etc.
यहाँ पे आप देख सकते हैं, और किचन, लैबोरेटरी, वॉशरूम, पेंटिंग ऑफ अ वॉल, अब यहाँ पे वॉल पे पेंटिंग भी बनवा रखी थी। तो बेसिकली जो ये पैलेस था मारी का रेजिडेंशियल एरिया था एज मेंशन्ड हियर, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी हब था, प्रोडक्शन और स्पेशली मेटल ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पे रखे जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा एक फेमस बात थी, फेमस इन इट्स टाइम, दैट अ माइनर किंग came from North Syria just to see it, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Mari, Zimrilim. Okay? उसके डेली लिस्ट जो है वो बार बार हमें रिवील करता है, जो खाना कितना ज्यादा होता था, क्वांटिटीज ऑफ फूड, उसका मतलब कितना खाना वहां पे लगता था, और जो डेली किंग की टेबल पे किंग के लिए सर्व किया जाता था, राजा के लिए सर्व किया जाता था, जिसमें कि था आटा, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर और वाइन। ठीक है, और वो ऑब्वियसली दूसरों की कंपनी में राजा बैठ करके खाता था, अपनी प्रजा के साथ तो नहीं, मिनिस्टर्स के साथ, मंत्रियों के साथ, इंपॉर्टेंट रॉयल्स के साथ, हाई ऑफिशियल्स के साथ। और ये जो प्लान है पैलेस का, इसमें हमें ये भी पता चलता है कि इसमें एक ही एंट्रेंस थी टुवर्ड्स द नॉर्थ। द लार्ज ओपन कोर्टयार्ड्स such as 131 were beautifully paved. Okay, the king would have received foreign dignitaries and its own people in 132, a room with wall paintings that would have awed the visitors. Okay, visitors देख करके बहुत ज्यादा awe में आ जाते थे, बहुत as in impress हो जाते थे. Okay, the palace was a sprawling structure with 260 rooms and covered an area of 2.4 hectares. इतना बड़ा एरिया था. Alright? The palace at Mari of King Zimrilim. ये आपको समझाने के लिए था, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. So now, moving forward, we see the kings of Mari, however, had to be vigilant. उनको vigilant होना पड़ता था, हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि जो हर्डर्स थे अलग अलग कम्युनिटीज के, वो बार बार किंगडम के अंदर, दे वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम बट दे वर वॉच्ड, ताकि वो बार बार अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश ना कर पाए, जिस तरीके से बाकी रॉयल्स ने, उन्होंने खुद भी अपना किंगडम और रूल एस्टैब्लिश किया था. राइट, अब जो कैंप्स है हर्डर्स का, वो बार बार मेंशन किया जाता है राजा और ऑफिशियल्स के बीच में जो लेटर लिखे जाते थे उसमें. एक लेटर में एक ऑफिसर राजा को ही लिखता है कि वो बार बार एक हर्डर को देख रहा था और फायर सिग्नल्स उसने दिए हैं रात को, और एक दूसरे के पास उसने सस्पेक्ट किया था कि कोई ना कोई हर्डर कोई अटैक प्लान कर रहा है. इसका भी एक मेंशन हमें देखने को मिलता है. लोकेटेड ऑन द यूफ्रेटिस इन अ प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड इन वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड आउट इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेटिस बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच uplands of Turkey, Syria and Lebanon, Mari is a good example of an urban center prospering on trade. Mari एक बहुत अच्छा उदाहरण या फिर एग्जाम्पल है कि वहां पे ट्रेड की वजह से बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी जगह. ऑलराइट, सो बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स. अब कुछ बोट्स थी जिसमें ग्राइंडिंग स्टोन भी था, लकड़ियां थी, वाइन था, ऑयल जार्स, और वो बार बार रुकता था मारी पे on the way to the southern cities from north to south. All right. So officers of this town would go abroad. इसके जो officers थे वो बार बार abroad भी जाया करते थे for trade and commerce. Inspect a cargo, a single river boat could hold 300 wine jars. एक single जो river boat थी उसके अंदर 300 wine jars fit आ सकते थे. All right. And levy a charge of about 1/10 of the value of the goods before allowing the boat to continue downstream, जब तक उसे आगे ना लेके जाया जाए. बार्ली स्पेशल ग्रेन्स में आता था, काफी स्पेशल चीज थी, और उसे इसीलिए स्पेशल बोट में भी रखा जाता था. सबसे इंपॉर्टेंट जो टैबलेट्स हैं वो मेंशन करते हैं क्या, कॉपर. कहां से? एक जगह का नाम मेंशन किया गया है, अलाशिया, जिसको सिप्रस नाम का एक आइलैंड है यूरोप में, वहां से, नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन. यहां का तांबा और टिन बहुत ज्यादा काम में लाया जाता था ट्रेड में.
और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी। एज ब्रॉन्ज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटीरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स, ब्रॉन्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी फॉर ट्रेड और चीजें बनाने के लिए। द ट्रेड वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस था इस ट्रेड का। दस although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. Militarily strong उतना नहीं था because they were herders after all, but prosperous बहुत था due to trade. Okay, excavating Mesopotamian towns. आज की डेट में मेसोपोटामियन एक्सकेवेटर्स, उनको क्या मिला है, काफी बड़े और हाई स्टैंडर्ड्स हैं एक्यूरेसी के रिकॉर्डिंग देन दी ओल्ड डेज। पुराने जमाने में इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। तो so that few dig huge areas the way Ur was excavated, ठीक है, उर की तरह बाकी जगहों पे excavations उतने अच्छे से नहीं हो पाई। Moreover, few archaeologists have funds to employ large teams of excavators, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फंड्स की प्रॉब्लम होती है, और ये डाटा ऑब्टेन करने का तरीका भी अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जैसे कि स्मॉल टाउन है अबू सालाबैक, जो कि लगभग 10 हेक्टेयर है एरिया में, और 2500 BC में उसकी पॉपुलेशन 10,000 से भी कम थी। ऑलराइट, द आउटलाइंस ऑफ वॉल्स वर एट फर्स्ट ट्रेस्ड बाय स्क्रैपिंग सर्फेसेस, सर्फेस को स्क्रैप किया, उसमें थोड़ा ऊपर के मिलीमीटर्स जो थे उसको वाइप ऑफ करके, माउंट था शार्प और वाइड, एक एंड था शवल और टूल का, उससे डिग किया। सॉइल जो था उसके नीचे थोड़ा मॉइस्ट था, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग कलर्स, टेक्सचर्स और लाइंस मिले ब्रिक्स की, ठीक है, ऑफ ब्रिक वॉल्स, पिट्स और अदर फीचर्स, गड्ढे खोदे हुए जैसे कुछ पिट्स बनाए हुए ब्रिक से, वो सारी चीजें मिली। फ्यू हाउसेस दैट डिस्कवर्ड वर एक्सकेवेटेड, कुछ जो घर मिले, जो घरों का ट्रेस मिला, क्या कहते हैं, अबू सालाबिक में, वहां पे उससे ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ शायद एक घर ही होता था। ऑलराइट, सो अलग अलग एनिमल रिमेन्स भी थे, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग प्लांट्स भी मिले, एंड अलग अलग जानवर जैसे कि डंग केक्स बर्न्ड एज फ्यूल, 10 किचन्स, जैसे कि चूल्हा जलाना, उसमें जैसे काउ डंग होती है, वो सारी चीजें उसमें मिली। जानवरों के रिमेन्स मिले, पिग के रिमेन्स मिले, एंड ये लोग उस टाइम पे पोर्क भी बहुत खाते थे। सो दैट इज वन मोर थिंग। एंड पोर्क फॉर इज नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ में पोर्क का बहुत ज्यादा रोल था। और माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से रूम में ये भी मिला है कि जो हाउसेस थे वो रूफ्ड थे प्रॉपर, उनमें छतें बनी हुई थी विथ पॉपुलर लॉग्स, पाम लीव्स, स्ट्रॉ एटसेट्रा, पाम लीव्स और स्ट्रॉ डाल के प्रॉपर एक रूफ बना करके अच्छे से वो रहते थे। एंड विच वर ओपन टू द स्काई, ओपन टू द स्काई भी थे, एक तरीके से रिमूवेबल भी था। दैट इज हाउ द आर्किटेक्चर वॉज in the city of Abu Salabek. All right. Cities in Mesopotamian culture. So, मेसोपोटामियंस जो थे वो सिटी लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे, ठीक है, और काफी अलग अलग कम्युनिटीज वहां पे आकर के रहती थी साइड बाय साइड, क्योंकि ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब जब वॉर के बाद ये सिटीज डिस्ट्रॉय हुई तो पोएट्री में इनके बारे में एक तरीके से डिस्कशन बहुत ज्यादा होने लगा और उनके बारे में लिखा जाने लगा ताकि लोग इन्हें भूल ना जाए। ऑलराइट, द मोस्ट पॉइंटेड रिमाइंडर ऑफ अस वाज द प्राइड ऑफ मेसोपोटामियंस टुक इन देयर सिटीज, अपनी सिटी में, अपने शहरों पे बहुत ज्यादा उन्हें प्राउड फील होता था, ठीक है। कम्स एट द एंड ऑफ द गिलगमेश एपिक। गिलगमेश, important name, important epic, which was written on the 12 tablets, ठीक है ना, 12 टैबलेट्स में से गिलगमेश के बारे में भी लिखा हुआ है। अब गिलगमेश कौन था? He had ruled the city of Uruk some time after एमेरकार, एमेरकार के बाद गिलगमेश का रूल आया था उरुक में, ओके, जो कि एक बहुत बड़ा हीरो था जिसने लोगों को सबड्यू किया था, अपने अंडर लिया था, अपना किंगडम बढ़ाया था, काफी बड़ा राजपाट था उसका, ठीक है। अब उसको तब सबसे ज्यादा धक्का लगा जब उसका एक बहुत अच्छा दोस्त मर चुका था। ऑलराइट, अब फिर उसने धीरे धीरे उसके दिमाग में आया कि इमोर्टैलिटी का सीक्रेट क्या होता है, कैसे इंसान अमर हो सकता है, इमोर्टल हो सकता है।
तो इस खोज में वो निकल गया। ओके, क्रॉसिंग द वाटर्स दैट सराउंडेड द वर्ल्ड, दुनिया घूमा वो और काफी पानी के थ्रू ट्रैवल किया, ये लेजेंड में लिखा हुआ है। आफ्टर अ हीरोइक अटेम्प्ट गिलगमेश फेल्ड एंड रिटर्न टू उरुक, वो फेल हो गया, उसे इमोर्टैलिटी का सीक्रेट नहीं मिला, अमर होने का सीक्रेट नहीं मिला, तो फिर वो थका हारा वापस आया उरुक। वॉल एंड बैक एंड फोर्थ, ही एडमायर्ड द फाउंडेशंस मेड ऑफ फायर्ड ब्रिक्स दैट ही पुट इनटू प्लेस, उसने देखा कि जो फायर्ड ब्रिक्स उसने लगवाई थी वो कितने अच्छे से लगी हुई थी और उनको एडमायर करने लगा। इट इज ऑन द सिटी वॉल ऑफ उरुक दैट द लॉन्ग टेल ऑफ हेरोइज्म एंड एंडेवर्स फिजल्स आउट, अब यहाँ पे थोड़ा एंडेवर्स और उसके जो क्या कहते हैं एपिक है थोड़ी फेड आउट होनी शुरू हो जाती है। अब गिलगमेश says that he even though he will die his sons will outlive him, उसे ऐसा लगता था कि वो तो चलो मर जाएगा लेकिन कम से कम उसके जो बच्चे हैं उसके बेटे हैं वो उससे ज्यादा जिएंगे, एज अ ट्राइबल हीरो वुड हैव डन। अब उसने ऐसा किया एंड उसने जो सिटी थी और जो शहर उसने बनाया था और वहां की जो प्रजा थी उसमें वो थोड़ा पीस और कंटेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, उसको खोजने की कोशिश कर रहा था जब उसे इमोर्टैलिटी का सीक्रेट नहीं मिला। ही सेटल्ड डाउन। सिंपल स्टोरी, लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब लेगेसी ऑफ राइटिंग के बारे में हम देखते हैं उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी। ओरली साइंस रिक्वायर्स टेक्स्ट्स एंड जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स कैन रीड एंड बिल्ड अपॉन। जो सबसे बड़ी लेगेसी है मेसोपोटामिया में वो है उसका स्कॉलरली ट्रेडिशन, ठीक है, ऑफ टाइम रेकनिंग एंड मैथमेटिक्स, समय को समझना, समय की गणना करना, और साथ में गणित में बहुत अच्छे थे, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल डेटिंग अराउंड 1800 BC are tablets with multiplication and division tablets, square root tables and tables of compound interest. The square root of 2 was given as, अब square root of 2 ऐसे दिया गया है इतना 1 + 24 divided by 60। इस तरीके से ये आप एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में यूज कर सकते हैं और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज यू हैव मेंशन्ड द आंसर विद एन एग्जाम्पल, बड़ी बात हो जाएगी। अब इसको अगर आप देखें काफी एक मतलब एडवांस सिस्टम है, इसका आंसर 1.41421296 आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है करेक्ट आंसर से, लेकिन स्टूडेंट्स जो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और इस तरीके से वो पानी की वॉल्यूम निकालते थे, पानी का भार चेक करना, टू चेक आउट द वॉल्यूम और द वेट ऑफ वाटर, वो ऐसा करते थे फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑलराइट, जो डिवीजन था साल का इनटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून एंड अर्थ, तब से ऐसा चल रहा है, और 4-4 हफ्ते में एक महीने का डिवीजन करना और एक दिन में 24 घंटे होना और एक घंटे में 60 मिनट होना, ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में ग्रांटेड में लेते हैं, लेकिन मेसोपोटामियन लोग इसको फॉलो करते थे। अब जो टाइम डिवीजन है वो अडॉप्ट किया हुआ था जो सक्सेसर्स थे अलेक्जेंडर के बाद, और वो आगे ट्रांसमिट हुआ था रोमन वर्ल्ड में, जिससे कि धीरे धीरे ये दुनिया के पास पहुंचा, फिर इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, मिडिवल यूरोप, एंड देन इट बिकेम द नॉर्म। ऑलराइट, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या जो भी हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द हिंदू पंचांग, वो यहां से आया है। तो जब सोलर और लूनर इक्लिप्स भी देखा जाता है तो उसका अकरेंस जो एनुअली होता है मंथ और डे के हिसाब से भी, उसके भी रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करे गए हैं, और साथ में कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है इन द इंस्क्रिप्शंस व्हिच वर फाउंड एट उरुक। ओके, so they were very well versed with their mathematics, formulas and calculation of time। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सके तो आप इस एग्जाम्पल को लिखें, बहुत आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, अब अगर राइटिंग और अर्बन इंस्टीट्यूशंस ना होते, सिटी लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो इस टाइप की मैथमेटिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलती। इंट्रिंसिक कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटी लाइफ एंड लिटरेसी। ओके, और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ाया भी जाता था, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, टैबलेट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, एंड कुछ बॉयज जो थे, कुछ बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको एज रिकॉर्ड कीपर भी ट्रेन किया जाता था आगे जाकर के।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रॉयल्स के लिए, और इंटेलेक्चुअल्स हु कुड बिल्ड ऑन द वर्क ऑफ द प्रीडिसेसर्स। ठीक है, तो उनका जो प्री ऑक्यूपेशन था अर्बन और मॉडर्न मेसोपोटामिया का, वो बहुत ज्यादा एक एडवांस्ड सिस्टम था। अर्ली लाइब्रेरी का भी मेंशन है आयरन एज में, जो असीरियंस थे इन द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर एट इट्स हाइट बिटवीन 720 टू 610 BCE, जो कि इजिप्ट तक जाता था, इतना बड़ा एम्पायर था। द स्टेट वॉज नाउ अ प्रेडिटरी वन, ठीक है ना, प्रेडिटरी था अपने नेचर में, कैसे, जो कि लेबर एक्सट्रैक्ट करता था एंड ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ फूड, एनिमल्स, मेटल एंड क्राफ्ट्स आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, प्रेडिटरी, दूसरे लोगों से ऐसे अपना टैक्स वसूल करना इन द फॉर्म ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऐसा किया जाता था। ऑलराइट, जो बड़े बड़े असीरियन किंग्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया था कि सदर्न रीजन बेबीलोनिया जो था वो सेंटर था हाई कल्चर का, एंड लास्ट ऑफ देम असुर बनीपाल, ये भी एक किंग था। उसने एक लाइब्रेरी अपने कैपिटल में कंट्रोल में ली थी, निविने में, जो कि नॉर्थ में है, निनिवे, और उसने काफी ज्यादा एफर्ट्स वो करे ताकि वो टैबलेट्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हिम्स, ओमन्स जैसे कि अंधविश्वास की जैसे थोड़ी बातें थी, अंधविश्वास भी अगर उसे बोलना चाहो तो ओमन्स थे, एक तरीके से वास्तु जैसे होता है, घर का डायरेक्शन, दिस एंड दैट, वो भी देखा जाता था। उसने अपने स्क्राइब्स को भेजा साउथ में टैबलेट्स को ढूंढने के लिए, और जो स्क्राइब्स थे उन्होंने ट्रेन किया था पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो भी उनके पास टैबलेट्स थे, ताकि वो बेबीलोनिया में जाकर के जो कलेक्शंस हैं उससे काफी ज्यादा एक बड़ा फ्रेम बना पाए। ठीक है, सुमेरियंस सीज टू बी स्पोकन अबाउट आफ्टर 1800 BC। सुमेरियंस एकदम विलुप्त हो चुके थे, साफ हो चुके थे। ऑल्दो सुमेरियंस सीज टू बी स्पोकन, और वो जो लैंग्वेज थी वो भी गायब हो चुकी थी, तो भी बाइलिंगुअल लोग थे जो सुमेरियन और अकेडियन टैबलेट्स लिखा करते थे उसी लैंग्वेज में। ऑलराइट, सो इवन इन 650 BC क्यूनफॉर्म टैबलेट्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, रिटन एज बैक एज 2000 BC वर इंटेलिजिबल। ये इंटेलिजिबल थे, काफी ज्यादा पढ़ाई होती थी इसमें। असुरबनीपाल के जो लोग थे वो अर्ली टैबलेट्स लिखी गई थी। गिलगमेश का जो एपिक है जिसमें वो लिखा हुआ था, उससे वो भी यहीं से निकला था, इन्हीं टैबलेट्स पे लिखा हुआ था। और जो टैबलेट्स थी वो खत्म ही असुरबनीपाल के बारे में होती थी कि असुरबनीपाल इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असीरिया, कि गॉड्स ने उसको सब कुछ दिया है, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें दी जाती थी इन टैबलेट्स में। ऑल राइट, अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, अब उस टाइम पे जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स थी, प्रीस्टेस थे, प्रीस्ट्स, ज्वेलरी, और जो भी ट्रेड के बारे में होता था वो हमें वहां पे नीचे बेबीलोन में मिलता है। और जो गॉड ऑफ उर है, रिलीजन के बारे में हमने देखा कि कैसे वो अपने रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते थे। सो उनका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक वे ऑफ लाइफ था, डीपली रूटेड इन कल्चर एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, इंपॉर्टेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं एजुकेशन वॉज इंपॉर्टेंट, सारी चीजें थी। हर्डर्स कम्युनिटीज के बारे में हमने पढ़ा, एंड सुमेर, उरुक एंड अदर मेसोपोटामियन सिटीज, यूफ्रेटिस, टिग्रिस, एंड देयर इंपॉर्टेंस in carrying out trade is something that we also learnt in this chapter. Now हम टाइमलाइन को अगर देखें तो टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार अपने हिस्ट्री के लेसन में बोलता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द की टू योर चैप्टर। आपके चैप्टर में जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उसको, उसकी जो चाबी है वो यहां से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल 7000 टू 6000 BC की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर सबसे पहले मेसोपोटामियन सिटीज में देखा गया था, वहां के प्लेन्स में, नॉट सिटीज में, प्लेन्स में। 5000 BC सबसे पहला मेसोपोटामियन टेम्पल बिल्ड हुआ था। 3200 BC पहली मेसोपोटामियन राइटिंग। 3000 BC उरुक एक बड़ी सिटी बनती है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ब्रॉन्ज, कांस का जो वेपन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने लगे। 2700 से लेकर के 2500 BC तक जो अर्ली किंग्स थे, जैसे कि
लेजेंडरी रूलर गिलगमेश भी रूल करता था। 2600 BC के आसपास जो क्यूनफॉर्म स्क्रिप्ट है उसका डेवलपमेंट होता है। ऑलराइट, 2400 BC रिप्लेसमेंट ऑफ सुमेरियन बाय अकेडियन, इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक लैंडमार्क चीज हुई थी। 2370 BCE सार्गन बना किंग ऑफ अकाड। ऑलराइट, 2000 BCE स्प्रेड ऑफ क्यूनफॉर्म राइटिंग इनटू सीरिया, टर्की और इजिप्ट। मरी और बेबीलोन काफी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स के रूप में इमर्ज हुए थे। 1800 BC मैथमेटिकल टेक्स्ट जो कि कंपोज करे गए थे, सुमेरियन अब गायब हो चुकी थी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एज वी हैव स्टडीड जस्ट बिफोर। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द असीरियन किंगडम 1100 BC, यहां पे हम देखते हैं। 1000 BC यूज ऑफ आयरन, ठीक है। 720 to 610 BC असीरियन एम्पायर। 668 to 627 BC रूल ऑफ असुर बेनीपाल। ओके, 331 BC finally Alexander conquers Babylon. Alexander the Great, Sikandar. All right. First century Common Era, Akkadian and cuneiform remain in use. अभी भी यूज में चल रहे थे। 1850s में decipherment of cuneiform script, यहां पे हम ये देखते हैं। All right. So as we have seen the timeline right now, we can also have a look at the questions, then we can culminate the chapter. Why do we say that it was not natural fertility and high levels of food production that were causes of early urbanization? अब high levels of food production because जो cities थी बहुत ज़्यादा ancient थी, वहाँ पे trade बहुत अच्छे से चलता था, अलग cities के साथ trade होता था। The use of metals also made it an important center, and natural fertility के अलावा जो रिवर्स थी उनके बैंक्स पे जो बार बार वो फ्लड हो जाती थी और बार बार ड्राई अप हो जाती थी, उसको अगर हम साइड रख करके भी अगर हम नोटिस करें, सो वी कैन से दैट इन अ वे बेसिकली जो हाई लेवल्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है जिसमें कि आगे देवर नेसेसरी कंडीशंस और कॉजेज। अब जैसे जो अर्बनाइजेशन भी हुई थी वहां पे हम ये नोटिस करते हैं कि they had an abundance of trade and an ancient civilization such as that of Mesopotamia. वहां पे जब हम देखते हैं as compared to other cities, natural and high levels of food production. अब animal herding communities भी थी, herders भी थे, craftsmen भी थे, and high levels of food production इतने ज्यादा लेवल पे होता था, grains and this and that, even temples पे उन्हें ऑफर किया जाता था। That is why we can say जो कॉजेस थे अर्ली अर्बनाइजेशन के वो ज्यादा पुश होने लगे थे अर्बन सिटीज की तरफ। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नेसेसरी कंडीशंस एंड विच द कॉजेज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन एंड विच वुड यू से वर द आउटकम ऑफ द ग्रोथ ऑफ सिटीज? ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ मेटल एंड स्टोन, डिविजन ऑफ लेबर, use of seals, military power of kings that made labor compulsory. Okay, which of the following were necessary conditions in which the causes of early urbanization? अब early urbanization जो हुई थी इस टाइम पे and which would you say were the outcome of the growth of cities? अब growth of cities के बाद जो outcome था जो उससे मिला था उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो water transport उनमें से एक है, ठीक है, and division of labor is another thing, क्योंकि we have studied that prisoners of war were used as servants and all such duties. So that is one more thing that we have noticed. Power of kings that made labor compulsory, military power of the kings. Of course ये भी एक point था उसमें because they were used for building the early urban structures and also contributed a significant part in urbanization during that particular time. Very important. Why were mobile animal herders not necessarily a threat to town life? जो मोबाइल एनिमल हर्डर्स थे, बेसिकली मोबाइल एज इन छोटे छोटे एनिमल हर्डर्स थे, वो
टाउन लाइफ के लिए थ्रेट इसलिए नहीं थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो छोटे सिटीज पे, छोटे अपनी जगहों के आसपास रेड कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल द अकेडियन किंग हु हैड ओवरथ्रोन और established his rule by raiding and looting the agricultural lands. That was a different scenario, but it was taken care of and fortified and protected by a full-fledged military later on. Why would the early temple have been much like a house? Because of the consolidation and uniting of people at the same time for a common motive. Food, grains, education, offerings, everything was done over there, and all of the people, even commoners, used to come there, and basically it became much like a house क्योंकि वहां पे weaving and stitching and all those activities and all those skills were also being taught. So I hope you understood this chapter, Writing in City Life, first chapter of class 11th history. Later on we'll be moving on to the next chapter. Till then, I want you to have a look at this timeline. Timeline बहुत important है. Events जो भी मैंने आपको मार्क कराए थे वो भी बहुत important थे. So have a look at them. इसको आप अच्छे से समझिए, as a story देखिए तो आप अच्छे से solve कर पाएंगे. Thank you, team Educate.